آج کی ویڈیو سے پہلے چند باتیں جو آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے تمام چینل ڈی مانیٹائزڈ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے معاشی مسائل ہیں۔ وہ تمام دوست جو صاحب استطاعت ہیں وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو یوٹیوب کی پالیسیوں کے حوالے سے سمجھدار دوست ہوں، جو اس کھیل کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ اس ڈی مانیٹائزیشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ واٹس ایپ نمبر جو سکرین پر ہے، اس پر مجھ سے ایسے دوست رابطہ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ ان دنوں گرمیاں ہمارے علاقے میں زوروں پر ہیں اور ہم روڈ ٹرپ پر جانے کا ایک پروگرام بنا رہے ہیں۔ جو بھی دوست اس سلسلے میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں، وہ بھی اس واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھی۔ اب چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ تمہارا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ تم خود بھی چاہتے ہو اور خدا بھی، اور یہ دونوں ٹائم اینڈ سپیس کی دو الگ دنیایں ہیں، دونوں ایک ساتھ ہو نہیں سکتے۔ دیکھو، مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں حالتیں ایک ہی تم کی ہیں۔ وہ خود جو خود ہو گیا وہ خدا سے الگ کچھ اور حقیقت ہی نہ رہا۔ یہ دونوں حالتیں یا سچویشنز الگ ہیں ہی نہیں، مگر ذہن کی مجبوری ہے کہ وہ چیز کی ضد تراشتا ہے، اپوزٹ تراشتا ہے، تو چیز سمجھ یا سمجھا پاتا ہے۔ اسی لیے اس نے میٹر کے متضاد کے طور پر سپیس کو لیا، جبکہ مادے کے ہر ایک ایٹم میں 99.99% سے بھی زیادہ سپیس ہے۔ خود اور خدا کے درمیان فرق بس تمہارے ذہن کی اسی مجبوری کا تخلیق کرتا ہے، ورنہ ہر خود میں 99.99% سے بھی زیادہ خدا ہی ہے۔ تو قصہ یہ ہے کہ تم نے کل سے الگ ہونے کا یہ جو وہم، یہ جو سراب پال لیا ہے، وہ بس اتنی سی بات ہے کہ مائنڈ سے تم خود کو پہچان پا رہے ہو، آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو۔ یوں سمجھو، خود مادہ ہے، خدا سپیس ہے، اور مادے کے ہر ایک ایٹم میں 99.18 بار 99 تک سپیس ہے۔ تو مجھے اب بتائیے، تم میں خدا کتنا ہے؟ اتنا ہی راز ہے جس کی بنیاد پر سارے روحانی کھیل صدیوں سے چل رہے ہیں۔ تم 99.18 بار 99 اگر سپیس ہو اور 0.17 بار 0 کے بعد ایک مادہ ہو، تو ایمانداری سے مجھے بتاؤ، تمہیں اصولی طور پر خود کو کیا کہنا چاہیے، مادہ یا روح؟ روح یہاں سمجھو سپیس کا نمائندہ ہے۔ اب ذہن کی مصیبت یہ ہے کہ یہ بنا کھڑا ہے سینس ڈیٹے پر، اور سینسز کی زد میں آتا ہے میٹر۔ اس لیے ذہن جب تمہیں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے دفع کر اس کو جو نظر ہی نہیں آ رہا، یہ دیکھ میں تو نظر آ رہا ہوں۔ تو ایکچول میں سوچو، تمہارا ذہن کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے چھوڑو اپنے 99.99% حصے کو، مجھے دیکھو، اس 0.00001% کو دیکھو، یہ ہی بس تم ہے۔ تو وہ مائنڈ جو میٹر سے ہی معاملہ کرنا جانتا ہے، وہ تمہیں کیسے ڈیفائن کرے گا جو 99.99% سے زیادہ نان میٹر ہے؟ اور وہ میٹر کو بھی کیسے ڈیل کرے گا جب مادے کا، میٹر کا ہر ایک ایٹم 99.99% سے زیادہ نان میٹر یا سپیس ہے؟ یاد رکھنا، جب تک میں ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ مائنڈ کی دنیا ایک سراب ہے، ایک کھیل ہے انجوائے کرنے کے لیے۔ اصلی حالت آپ کی اس سے ہمیشہ الگ ہے۔ ہاں، شور متصل اور مسلسل ہو جائے تو پھر مائنڈ کی دنیا اور انا ہی صرف نظر آتے ہیں۔ یہ بات بہت سادہ ہے، اور سادہ ہے اسی وجہ سے ذہن اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ غور کریے نا، مائنڈ کیسے کام کرتا ہے۔ تم کہتے ہو یہ ہوں
मैं मुसलमान हूँ, पंजाबी, पठान, बलोच हूँ, अमीर या गरीब हूँ, मैं ऊंचा हूँ या नीचा हूँ, मैं गोरा हूँ या काला हूँ। ये सब चीज़ें वो हैं जो हवास से परसीव कर पाते हो, कुछ देख पाते हो, सुन पाते हो, कुछ चख पाते हो, और फिर इस सारे सेंस डेटा को लफ्ज़ों और लेबल की शक्ल में महफूज कर लेते हो अपनी मेमोरी में। कभी ये सारे लेबल खुद से माइनस करके पूछिए ज़रा, कौन हो तुम? जब ये सारे लेबल हट जाते हैं तो दुई की दुनिया वहीं पर गिर जाती है और एक होने की हालत का तजर्बा होता है। ये सारे लेबल्स ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, ये बस हैं। ये उस अनमैनिफेस्टेड का इसी तरह इजहार है। इसमें मसला कहीं नहीं है, बस ये फन आना चाहिए कि कभी कभी इन लेबलों से खुद को अलग करके देख लिया जाए। देखो ना, तुम डॉक्टर बन गए, दुनिया तुम्हें डॉक्टर डॉक्टर कह रही है, मगर क्या तुम्हें ये हर वक्त याद रखने की जरूरत है? हरगिज भी नहीं। क्लिनिक में हो या हॉस्पिटल में हो तो खुद ब खुद तुम डॉक्टर फील करते हो, बिहेव करते हो। जब मैं कहता हूं अपने साथ बैठो, मेडिटेशन में या इबादत में डूबो या किसी दुरुस्त गुरु की सोहबत को चुनो, तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। इसे पेचीदा बनाने की जरूरत नहीं। तुम खेल में हो, खिलाड़ी की तरह बिहेव करो, मगर जब खेल से बाहर हो तो खिलाड़ी रहने की जरूरत क्यों है? तुम घर में हो, फैमिली मैन की तरह बिहेव करो, ऑफिस में हो उसी तरह बिहेव करो, जो सिचुएशंस हैं, जो फंक्शंस हैं, वो सारे पूरे करो। मगर जब अकेले हो, नींद से पहले बिस्तर पर बैठे हो, जागने के फौरन बाद बिस्तर पर पड़े हो, खाना खा रहे हो, वॉक कर रहे हो, शावर ले रहे हो, तो अब कोई ज़रूरत नहीं वो खेल खेलने की जो दफ्तर या बिजनेस में खेला जाता है। अब फील करो खुद को, देखो खुद को, लेबल गिराने की मशक करो, सिर्फ सांस पर तवज्जो ले आओ, बॉडी के बिना होने की मशक करो, जहन को गिराने की मशक करो, सारी थकन उतर जाएगी। खेल के लिए तुम फिर ताज़ा दम हो। याद रखना, खेल की दुनिया में खिलाड़ी को मेहनत करना पड़ती है, तकल्लुफ करने पड़ते हैं। खिलाड़ी रहने के लिए, रोल निभाने के लिए तगोदो करने की ज़रूरत होती है। खेल से बाहर हो तो जो तुम हो वो होने के लिए मेहनत, कोशिश और तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है? बस उस वक्त तुम हो, और जो तुम हो, हकीकी तुम, वो उससे अलग नहीं, वो कुल हस्ती का हिस्सा है। मगर तुम्हारा माइंड मुसलसल मश्क से इतना मजबूत हो गया है कि ये स्पेस, ये वक्फा, ये खुद होने का मौका दिखाई ही नहीं देता। इस अकेलेपन में भी तुम दुनिया की दुकान सजा के बैठे रहते हो। दुनिया की दुकान का मतलब है दुई, दो होने का ख्याल, अलग होने का ख्याल। मैं ये हूं और कुल मुझसे अलग है। उसको जाना जा सकता है, मगर इस दुई की दुनिया और तजादात के बगैर तुम्हारा ये जहन कभी उसे समझ ही नहीं सकता। फर्ज करो मैंने पूछा तुम कौन हो, तुमने कहा डेविड। क्या मतलब है इसका? सोचो, अगर दुनिया में कोई अकमल, अजहर, गौतम या कोई भी नाम ना हो तो क्या तुम कहोगे मैं डेविड हूं? तुमने कहा मैं मुसलमान हूं। अब अगर किसी और मजहब का कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं तो क्या ये लेबल खुद को दिया जा सकता है? तुमने कहा मैं इंसान हूं, और अगर कायनात में इंसान के अलावा कोई और स्पीशी होती ही ना तो क्या ये लफ्ज इंसान बामानी लगता? ये है तुम्हारे माइंड की दुनिया। इसे हर शनाख्त के लिए कोई सहारा चाहिए, कोई दुश्मन चाहिए, कोई अपोजिट चाहिए जो तुम्हारा होना साबित करे। क्या बात आपकी समझ आ रही है? तुम उसकी वजह से हो जो तुम नहीं है। एक बड़े बादशाह का दुश्मन मर गया तो वो बादशाह फूट फूट कर रो रहा था, जैसे उसका कोई अपना मर गया हो। दरबारी बोले, हजूर क्यों रोते हो? दुश्मन ही तो मरा है, वही ना जिसे आप खुद भी मारना चाहते थे। बादशाह बोला, बात तो सच है, मारना तो मैं उसे चाहता था, लेकिन आज जब वो मरा तो मुझे अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। खुद को डिफाइन करने में मसला आ रहा है। गौर से देखना, तुम भी तुम्हारे दुश्मन मुकाबले मुतजाद ही से तय होते हो। तुम डेविड हो क्योंकि कोई असलम, कोई गौतम, कोई पीटर है। तुम पाकिस्तानी हो क्योंकि कोई हिंदुस्तानी है। तुम मुस्लिम हो क्योंकि कोई हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी है।
ईमानदार का लक़ब इसलिए मिला है क्योंकि कोई बेईमान है, साध कोई कहला रहा है क्योंकि कोई चोर है, खूबसूरत कोई है क्योंकि कोई बदसूरत है। तुम बतौर अना दुश्मन के सहारे ही बस खड़े हो। इनलाइटनमेंट वो हालत है कि जब सारे अपोजिट गिर जाएं और तुम फिर भी रह जाओ। मगर मज़े की बात यह है कि अपोजिट गिर जाएं तो दूसरा गिर गया, दी अदर, और अब तुम भी वही हो, कुल भी वही है। खुद और खुदा का बस इतना सा ही फासला है। ये फासला रोज तुम्हारी नींद में गिरता है, मगर चूंकि नींद में माइंड भी गिर जाता है, इसलिए तुम इस पीसफुल हालत की मेमोरी नहीं बना पाते। अब क्या तुम्हें ये बात दिलचस्प नहीं लग रही? क्या ये खेल दिलचस्प नहीं लग रहा कि अना मुकाबले पर, अपोजिट्स पर खड़ी है, इसका वजूद दूसरे पर मुनहसर है, मगर सारा दिन वो दूसरे को मिटाने की कोशिश कर रही है। साध चोर का दुश्मन है, ईमानदार बेईमान का दुश्मन है। मगर सोचो, जिस दिन चोर मिट गया, कौन साध कहलाएगा? जिस दिन झूठ मिट गया, सारे सच्चों को भी उस दिन मिटना होगा। सारे ईमानदार इसलिए हैं क्योंकि दुनिया में बेईमान हैं, तो असूली तौर पर ईमानदारों को अपने ईमानदार होने पर बेईमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए। सेहत को बीमारी का एहसान मंद होना चाहिए। जिंदगी को मौत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक पल के लिए सोचिए, मौत ना होती तो जिस जिंदगी की लालच में सारा दिन तड़पते हो, उसका अंजाम क्या होता? यकीन मानो, ऐसी जिंदगी जो मौत के तसव्वुर से पाक होती, तुम उसे जिंदगी तक ना कह पाते। उसके लिए कोई लालच ना होती, और तो और उसके लिए कोई तड़प ना होती। तुम अपनी साइड तक चेंज ना करना चाहते, पहाड़ और पत्थर जैसा बिहेव करते। अना का सारा सिस्टम यही है, अपोजिट बनाओ और किसी चीज को मुवाफिक जानकर जियो। जैसे खेल में एक रूल तुमने ले लिया। फुटबॉल का खेल देखते हो, क्यों गोलकीपर बॉल को गोल में जाने से रोक रहा है? क्यों अटैकर या फॉरवर्ड प्लेयर गोल में बॉल फेंकना चाहता है? मैच से बाहर क्या वो ऐसा करते हैं कि किसी भी बॉल को किसी भी ऐसी चीज से न गुजरने दें जो गोल जैसी लग रही हो? नहीं करते। अना भी ऐसा ही तुम्हारा एक खेल है। रोल तुमने ले लिया और गोल करने या रोकने की कोशिश में हो। जिस वक्त खेल से बाहर होना सीख लेते हो तो खेल का मजा और ज्यादा हो जाता है। जैसे फुटबॉल का प्लेयर बाहर की आम जिंदगी में खेल के किसी असूल को अप्लाई नहीं करता, मगर जब रिलैक्स होकर दोबारा खेलने आता है तो पूरे दिलो जान से खेलता है। लोग कहते हैं इनलाइटनमेंट इसका नाम है कि दुकान में दिल ना लगे, बिजनेस की परवाह ना रहे, बच्चों की घर की फिक्र ना रहे। गलत इनलाइटनमेंट है जिसको तुम पकड़ रहे हो। अना खेल का वक्त है। खेल के असूल होते हैं, रूल होते हैं जो बाहम मिलकर तुम लोग तय करते हो। इन रूल्स को, असूलों को फॉलो करना चाहिए। तुम जिस भी दौर में हो, जिस भी अहद में जिंदा हो, बच्चे हो तो बच्चे की तरह, बड़े हो तो बड़े की तरह। रूल्स तय हैं जिन्हें तुम इखलाकी कदरें कहते हो। ये खेल के रूल हैं। इखलाकी कदरों का मजहबी वैल्यूज से कोई भी लेना देना नहीं होता। मजहब तो बस इस समझ का नाम है कि ये खेल है और ये रियल जिंदगी है। याद रखना, आज तक किसी भी खुद ने खुदा को नहीं पाया है, क्योंकि जूं ही कोई खुदा को पाता है वो खुद रहता ही नहीं। जैसे नींद में होता है, तुम खुद नहीं रह जाते। कोई लेबल नहीं, कोई शनाख्त नहीं। यही वो बुनियादी हकीकत है जिसकी तरफ सारी बेदार रूहें इशारा करती गई हैं। मैं को मारना, अना को मिटाना। याद रखना, मैं मारना और अना मिटाना खेल को मिटाने का नाम नहीं, बस ये जान लेने का नाम है कि ये खेल है, ये असल जिंदगी का मैदान। किसी खुद ने कभी खुदा नहीं पाया। एक रह जाए तो हकीकत पा ली गई, फिर दो ही बातें रह जाती हैं, ला मौजूद इल्लल्लाह या अनल हक। जैसे कतरा समंदर को नहीं जान सकता, कतरा कतरे की हालत में समंदर को नहीं जान सकता। दो ही सूरतों में वो ये जान सकता है, या कतरा समंदर में गिर जाए और कह उठे ला मौजूद इल्लल्लाह,
یا قطرے میں جو پانی ہے اس کا سمندر ہونا سمجھ میں آ جائے اور وہ کہہ اٹھے انا الحق، کیونکہ سمندر ایک بڑا قطرہ ہی ہے اور قطرہ ایک چھوٹا سا سمندر ہی ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے۔ جو قطرہ اپنے قطرے ہونے کی شناخت کو نہ چھوڑ سکے وہ کبھی سمندر نہیں بن پاتا۔